Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Gauswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about water as a resources. So in this topic we have seen importance of the water. Then we have also discussed about conservation methods of the water. So I hope all of you understood very well about this topic. And today's our main topic is vegetation and wildlife. So let's get start the topic. So first of all, I would like to show one animated video. It is related to natural vegetation and wildlife. So I start animated video. Significance of vegetation and wildlife. In this lesson, we will study the importance of natural vegetation and wildlife. Let's begin. Natural vegetation refers to trees and plants that grow in nature without any human interference. Due to the growth in human population, forests are being cut to create space for building houses. Vegetation is very important because it reduces carbon dioxide levels, provides oxygen to survive, reduces dust, and maintains the required air temperature. Wildlife refers to all organisms that live freely in nature. It includes animals, birds, insects, and fish. Wildlife is essential for maintaining balance in nature. However, due to human activities like poaching, hunting, and deforestation, a lot of wildlife is losing its habitat, leading to their extinction. There are various threats to natural vegetation and wildlife. Deforestation leads to the loss of vegetation and wild animals. Climate change, in the form of increasing ocean temperatures and diminishing Arctic sea ice, affects marine biodiversity and in turn humans as well. Overexploitation can impact our wildlife and vegetation significantly and in some cases eliminate them forever. We need to eliminate these threats to ensure the survival of both vegetation and wildlife. So in this video we have seen the importance of the forest and wildlife. So I hope you enjoyed this video. Once again मैं सभी टॉपिक को रिपीट करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है. सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर आवर एनवायरनमेंट. इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम इज इंटरडिपेंडेंट सिस्टम बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की बात करें तो सभी एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो एयर, वाटर, सनलाइट. तो इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में ये सभी थिंग्स हैं. Plants are dependent on sun for the production of food. Then animals and herbivorous animals are also dependent on a plant for the consumption of food. Then carnivorous animals are dependent on a herbivorous animal for the food requirement. So सभी एक दूसरे पे डिपेंडेड है. अगर कोई भी एक स्टेप भी इकोसिस्टम में से चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी. और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस ये दोनों एनिमल हमें देखने को मिलता है. अगर हर्बीवोरस एनिमल कम हो जाएंगे या फिर हर्बीवोरस एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, कार्निवोरस एनिमल का सर्वाइवर खतरे में आ जाएगा. एंड कार्निवोरस एनिमल अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ कि अगर वाइल्ड लाइफ होगी तो पूरी इकोसिस्टम चलेगी, और अगर पूरी इकोसिस्टम को हमें अच्छे रखना है तो हमें इस वाइल्ड लाइफ को बचाना है. एंड फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ ट्री सभी एक साथ मिलके फॉरेस्ट को बनाते हैं. एंड फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में से हमें ऑक्सीजन मिलता है, मीन्स प्लांट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, plant provides rain, then means plant provides water, then plant also reduce the global temperature of the earth.
सो ये सभी बेनिफिट है प्लांट्स के। अगर हम प्लांट को काटेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे, तो क्या होगा, ये सभी बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। सो इन दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो गया। दो साइड हम देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया एंड बीच वाला पार्ट, जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स काटे गए हैं। इससे क्या होगा कि एक तो नेचुरल वेजिटेशन का जो कवर है ये हमारी सॉइल में देखने को नहीं मिलेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो लीड टू द सॉइल इरोजन। एंड सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इससे क्या होगा, फॉरेस्ट कवर कम होगा, हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा, हमें वाटर कम मिलेगा, ग्लोबल टेम्परेचर हाई हो जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं कि हमें सरवाइव करना है, हमें हमारा हैबिटेट प्राप्त करना है, इसीलिए हम फॉरेस्ट को काट रही है। बट फॉरेस्ट को हमें नहीं कट करना है, क्योंकि फॉरेस्ट इज़ अ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल अपनी नेचुरल हैबिटेट को लॉस्ट कर जाएंगे। सो this is picture about deforestation. Then we have also discussed some importance of the plant, like reduces carbon dioxide level. This is the first use of plant. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करते हैं, क्योंकि प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है उसको बाहर निकलता है। सो ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन और डिफरेंट एनिमल के लिए काफ़ी यूजफुल है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज करता है। अगर हम प्लांट को काट देंगे, क्या होगा, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। देन सेकेंड यूज इज रिड्यूसेस डस्ट। डस्ट को कम करता है फॉरेस्ट और प्लांट। सो दिस इज द another importance of the forest. Then we have also discussed about poaching and hunting. हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रीडी मोटिव से, इसके कारण हम पोचिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, और इससे भी क्या होगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इन दिस पिक्चर वी कैन सी द डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी। हम क्या कर रहे हैं, ये सभी वुड को कलेक्ट कर रहे हैं, और हम उसको बिल्डिंग बनाने के लिए और डिफरेंट यूज़ करते हैं इस वुड का। सो इससे हम देख सकते हैं कि ढेर सारे ट्रीज को हम काट रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देन ये पिक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम देख सकते हैं काफ़ी सारे मंकीज रोड पे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटा है। मंकीज कहाँ पर रहते हैं, इन द ऑन द पेड़, ऑन द ट्री, और हम अगर ट्री को काट रहे हैं तो उसका नेचुरल हैबिटेट लॉस्ट हो जाएगा। सो ढेर सारे मंकी इन बिटवीन रोड्स हमें देखने को मिलता है। Then in this picture we can see the leading of global temperature। काफ़ी बढ़ रहा है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, एंड ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओशन में ढेर सारा आइस हमें देखने को मिलता है, तो ये आइस से ये पिघलता जाएगा, आइस मेल्ट होगा, एंड इससे क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और छोटे छोटे आइलैंड है उसमें वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और ये छोटे छोटे आइलैंड है वो डूब जाएंगे। देन सेकेंड इम्पैक्ट इज क्लाइमेट चेंज। हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। हम एक क्लाइमेट के ऊपर सरवाइव करते हैं, बट क्लाइमेट चेंज होगा तो सभी एनिमल को डिस्टर्बेंस होगा। सो दिस इज अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। So in this animated video we have discussed about importance of the forest and wildlife, and we have also discussed some negative impact of the deforestation. So I hope you understood very well about this topic. So let's move to our main topic. So let's start practice question 9. So question is, what is natural vegetation? So natural vegetation refers to the plants that have not been grown by humans.
नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, बट ये ऐसे प्लांट्स है जो ह्यूमन ने ग्रो नहीं किया। ह्यूमंस का कोई रोल हमें नेचुरल वेजिटेशन में देखने को नहीं मिलता। सिंपल सी बात करें कि हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट का प्लांटेशन करने के लिए सीड को सॉइल में डालते हैं और हम उसको ग्रो करते हैं, हम उसको वाटरिंग करते हैं, इरिगेशन देते हैं, देन हम उसकी केयर करते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल वेजिटेशन होगा। बट नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, नेचर ऑटोमेटिकली प्लांट ग्रो हो रहे हैं और हमें उसको वाटर नहीं देना पड़ता, इरिगेशन नहीं देना पड़ता। दिस इज नेचुरल वेजिटेशन। सो नेचुरल वेजिटेशन refers to the plants that have not been grown by humans। ह्यूमंस का कोई रोल हमें नेचुरल वेजिटेशन में देखने को नहीं मिलता। Then why is natural vegetation important? So natural vegetation is important because they absorb carbon dioxide and release oxygen from their leaves, which humans and other animals need to breathe। सो नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स सिंपल से प्लांट। प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, and this oxygen is very useful for the humans and other animal for breathing process। so इसीलिए हम कह सकते हैं कि natural vegetation are is very important। then third question, what are some threats to natural vegetation? natural vegetation को कौन खतरा पहुंचा सकता है? so deforestation and over explosion are some threats to the natural vegetation। हमने देखा नेचुरल वेजिटेशन को थ्रेट पहुंचा सकते हैं डिफोरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लोशन। Then next question is, what is wildlife? So wildlife includes all organisms that live freely in nature. It includes animal, birds, insects and fish। So wildlife की बात करें तो जो भी एनिमल नेचर में फ्रीली रहते हैं, लिव फ्रीली इन नेचर, इसको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ। इट इंक्लूड्स एनिमल्स, जो भी एनिमल्स नेचर में फ्रीली रहते हैं हम उसको कहेंगे वाइल्ड लाइफ। काफ़ी सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, ये सभी नेचर में फ्रीली रहते हैं तो हम उसको कहेंगे वाइल्ड लाइफ। देन वाई इज वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट? वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है? सो वाइल्ड लाइफ हेल्प्स is in maintaining the balance of nature, provide us with many useful materials। Wildlife also act as a decomposer which are essential to clean environment। सो वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस देखें तो इट इज़ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर, इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं वाइल्ड लाइफ। देन प्रोवाइड अस विथ मैनी यूजफुल मटीरियल्स। देन बात करें, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो एक्ट एज अ डिकम्पोजर which are essential to clean environment। So this is the importance of wildlife। Then next question is, what are some threats to wildlife? Wildlife को क्या खतरा है? So habitat loss, hunting and poaching are some of the threats to wildlife। हैबिटेट लॉस की हमने बात देखी थी कि डिफोरेस्टेशन, जिससे क्या हो रहा है, प्लांट्स कट हो रहे हैं और प्लांट अगर कट हो गए तो उसका नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, ये लॉस हो जाएगा। सो दिस इज थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ। देन हंटिंग एंड पोचिंग, ये भी एक थ्रेट है टू द वाइल्ड लाइफ। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से बचाना है? सो फर्स्ट वेज इज स्टॉप कटिंग ट्रीज। ट्रीज को हमें कट करना बंद करना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जिसका नेचुरल हैबिटेट है ट्रीज, अगर हम ट्रीज को काटेंगे तो वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट लॉस हो जाएगा। बट अगर हम ट्रीज को नहीं काटेंगे तो ये एक कंजर्वेशन प्रोसेस हो सकता है वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए। देन इंक्रीज
सिक्योरिटी टू प्रिवेंट पोचिंग एंड हंटिंग एंड पोचिंग इवेंट को कम करना है, और इसके लिए हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ एनिमल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। देन थर्ड इज प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट्स, उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हमें बचाना है। मीन्स वाइल्ड लाइफ एनिमल जिसका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, सो वी प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। देन प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन टू सेव द सी लाइफ, वाटर पोल्यूशन को भी कम करना है, क्योंकि सी लाइफ जहाँ पर भी वाइल्ड एनिमल हमें देखने को मिलता है, सो सी लाइफ को बचाने के लिए हमें क्या करना है, वाटर पोल्यूशन कम करना है। देन क्रिएट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज, सो हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरी बिल्डअप करनी है। एंड इन द इंडिया देर आर मैनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरी. So in this video we have discussed about importance of the wildlife and forest. So I hope you understood very well about these all topics, and let's move to recap of all the topic. अब तक हमने जो भी देखा SB1 से लेकर SB15 तक, ये सभी पॉइंट को हम एक बार रिकेप करते हैं. So in the first video lecture we have discussed about resources. So what is resources? Resources is a thing on which we are dependent, and resources is a thing which satisfy our human need. So anything that has utility or is used to satisfy human need is called as a resources. For example, sunlight, water and soil have utility for us, and it is also used to satisfy our needs. So sunlight, water, soil ये सभी काफ़ी utility रखते हैं, काफ़ी usefulness रखते हैं, and ये सभी things पे हम dependent हैं. That's why these all things are called as resources. और ये सभी point हमने वीडियो लेक्चर में देखा था. Then there are three types of the resources. First is natural resource, second is human made resources, and third is human resources. Then what is natural resources? Resources that come from nature and can be used without making any changes to them. This is known as natural resource. नेचुरल रिसोर्स में हमने देखा था कि जो भी नेचुरल थिंग है उसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स, एंड ये सभी थिंग्स जिस पे हम डिपेंडेड है. फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, दिस ऑल आर नेचुरल थिंग एंड वी ऑल आर डिपेंडेड ऑन दिस थिंग. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स. Then second type is human made resources. So resources that are made by human beings by changing the form of natural substance. ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करें, जो भी थिंग ह्यूमन बींग ने बनाई है और नेचुरल सब्सटेंस में कुछ चेंज लाके बनाई है, इसको हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल ब्रिज, roads, machinery and technology, these all are example of human made resources. Then third type is human resources. So people with their knowledge, skills and abilities are resources themselves. For example, teachers, doctors, farmers, carpenters, these all are example of human resource. ह्यूमन रिसोर्स में हमने देखा था कि कोई भी पीपल जिसके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, कोई एबिलिटी है, तो हम उस पर डिपेंडेड हो गए, तो हम उसको कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स. सो टीचर्स, तो स्टूडेंट आर डिपेंडेड ऑन अ टीचर्स फॉर एजुकेशनल एक्टिविटी. देन डॉक्टर्स की बात करें, पेशेंट इज डिपेंडेड ऑन अ डॉक्टर. एंड फार्मर की बात करें, ऑल द पीपल्स आर डिपेंडेड ऑन फार्मर्स. कारपेंटर्स, ये सभी जिसके ऊपर हम डिपेंडेड है, तो हम उसको कहेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज. Then next point is natural resources. So there are two types of natural resources. First is renewable resources and second is non-renewable resources. So
Renewable resources can be renewed in nature or replenished by nature. नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो ये नियर फ्यूचर में रिन्यू हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, सनलाइट, दिस ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने देखा था these all are limited in a stock, takes thousands of years to replenish. And for example, coal, petroleum, minerals, these all are example of non-renewable resources. Then let's move to next point. In the video lecture series, we have also discussed about land as a resources. So land use has changed over time with new industries and the increase in the population. जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से न्यू इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, लैंड यूज चेंज होता जा रहा है. People have started using more land for various activity other than agriculture. बेसिकली लैंड हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए लैंड का यूज़ करते हैं, बट आज हमारा पर्पस बदल गया है. आज हम वेरियस एक्टिविटीज़ लैंड पे करते हैं. सो पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग मोर लैंड फॉर वेरियस एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर. For example, using land for construction of factories, commercial places and buildings. आज हम देखें तो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉमर्शियल प्लेसेस बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है. और मेन पर्पस हमारा क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी. बट इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन present time. Then we have also discussed about soil erosion. So soil erosion is a transportation of soil particle from one place to another. So soil erosion is a problem we need to tackle as the erosion drains away the topmost fertile soil. So this is the result of soil erosion. Soil erosion से क्या होता है? Soil का top most fertile soil है, ये इरोड हो जाएगा, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So this conservation of soil can be done by adopting practices like mulching, terrace farming, intercropping. So सॉइल कंजर्वेशन को प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्चिंग प्रोसेस करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे. देन water as a resource is very important. It's important to conserve water as all living organisms depended on it for their survival. देन हमने वाटर एज अ रिसोर्स देखा था कि वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी रिएक्शन में, सभी प्रोसेस में. स्पेशली बात करें ड्रिंकिंग करने के लिए, वाटर को ड्रिंक करने के लिए हम काफ़ी डिपेंडेड है. एंड all the living organisms are dependent on a water. So in this video we have discussed about importance of natural vegetation and wildlife. So I hope you understood very well about this topic, and in the last we have seen the revision of all the topics that we have covered in our lecture series. So I hope आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. एंड यूनिट टेस्ट की बात करें तो यूनिट टेस्ट में SB1 से लेकर SB15 हमारा सिलेबस होगा. एंड आप सभी को टेक्स्ट बुक पोर्शन मीन सप्लीमेंट्री बुक में से आपको प्रिपेयर करना है. देन मैंने आपको जो भी फेयर बुक क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सभी आपको प्रिपेयर करना है. देन थोड़ा सा पार्ट मैं इंटरनली भी पूछूंगा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग. आप सब कितने अंडरस्टैंड हुए हैं ये टॉपिक के बारे में, इसमें से भी आपको ये यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे. सो आप सभी को यूनिट टेस्ट के लिए अभी से वेल प्रिपेयर रहना है. आप सभी बेस्ट तैयारी करो एंड ज़्यादा मार्क्स लाओ, ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिट टेस्ट. एंड this is end of the video. In the next video we will start next important topic. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.